respected speaker, participants and members. Assalamu alaikum and a very good evening to you all. On behalf of IEEE FJWU, I am truly honored to be welcoming you all to the third and final module conducted in commemoration of IEEE Day 2021. Your participation in this event is highly appreciated. IEEE Day celebrates the young and successful youth of engineering, especially women, who continue to contribute to the future of this world. While we are a part of IEEE, we are also proud to be sharing this occasion in collaboration with a number of other communities across the country. Now, Aisha will speak a few words to introduce our speaker. Thank you, Shasna. I hope I'm audible. Yes, Aisha. Okay. Today's topic is all about professional development with IEEE, and I am glad to announce Sir Sumama Zaim as our guest speaker for the day. He's a LinkedIn trainer and personal brand coaching. He has given 100+ talks on IEEE, cloud computing, personal branding, LinkedIn, and community building. Due to having a long-term relationship with IEEE, he has not only developed a deep understanding of IEEE culture and norms, but also had his fair share of experiences and achievements. His achievements on campus, although noteworthy, are overshadowed by those on the national and international scales. Thank you so much, sir, for being here with us today. We hope his knowledge will enlighten us all to a great extent. I hope that all the participants will continue to show active participation throughout the session. You may share your question in the chat box and wait until the end of the session or unmute your mic. Until then, I would like to kindly request you to keep your microphones and cameras off. Back to you, Shazna. Thank you, Aisha. So the feedback form will be shared towards the end of this session, most probably after the quiz, which has been arranged. Please be patient until then. However, do fill the feedback form with your name and email address spelled correctly to make sure that you receive your certificates. Failure to do so will make it impossible for us to confirm your participation. Also, guys, this platform has a very user-friendly option to share our reactions. If that option is visible on your screen, please feel free to share, to use them appropriately throughout the event. Let us now begin the session without any further delay. Over to you, sir. Thank you very much and Assalamu alaikum everyone. So can you please confirm if you can see my screen and am I audible too? Yes, sir, your screen is visible and you are audible. Okay, so Assalamu alaikum. First of all, I am thankful to Ms. Neha Hafiz, IEEE Fatima Jinnah Women University Chairperson Y, for organizing this wonderful IEEE Day 2021 celebration. IEEE डे क्या है, IEEE क्या है, उसके बारे में प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाया IEEE के बारे में जो है वो आज का ये बेहतरीन जो है वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया और होपफुली आप काफ़ी लोग कुछ यहाँ से जो है वो सीख के जाएंगे। जो मेरा मोड ऑफ मीडियम होगा वो बायलिंगुअल या सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है नेटवर्किंग। तो जब आप किसी कॉन्फ्रेंस या इवेंट में जाते हैं, IEEE जब आपको स्पॉन्सर करता है तो आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं जिससे आप जो है वो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। कमिंग बैक टूवर्ड्स दिस स्लाइड, सो नेक्स्ट पॉइंट था IEEE एक्सट्रीम। IEEE एक्सट्रीम रिसेंटली जो है वो कंपटीशन चल रहा है और वो जो है वो ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड प्रोग्रामिंग कंपटीशन होता है, उसमें आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। IEEE.tv है, इस पर तमाम सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह IEEE का सेंटर फॉर लीडरशिप एक्सपीरियंस एक वेबसाइट है IEEE CLE। जब आप गूगल करेंगे उससे ये होता है कि स्टूडेंट ब्रांच की जो लीडरशिप है, जैसे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ट्रेजरर, और उनके क्या क्या रोल्स हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट ब्रांच ने किस तरह एक्टिविटीज़ ऑल अक्रॉस द ईयर करवानी है, वो कैलेंडर वहाँ मौजूद होता है। स्कॉलरशिप्स का मैं जिक्र कर चुका, यू जस्ट नीड टू गूगल इट। इवन IEEE.org पे जाकर कस्टमर सपोर्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही है IEEE पे, यू कैन जस्ट गो देयर, ईमेल देम और इवन मैसेज देम डायरेक्टली। अब आ जाते हैं बात कम्युनिटी पे। सो मेंबरशिप बेनिफिट से ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की IEEE के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
नेटवर्किंग आपकी ज़्यादा इंक्रीज होती है और आपको स्पेसिफिकली IEEE की ईमेल मिलती है, जो कि कभी अमूमन कम चांसेस होते हैं कि स्पैम में जाए। जब आप किसी सीनियर्स को, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, IEEE या कस्टम डोमेन, इवन योर नेम, आपकी वेबसाइट की डोमेन से ईमेल करते हैं, तो उससे जो है वो उसकी वर्थ ज़्यादा होती है और क्रेडिबिलिटी आती है कि वाकई में ये IEEE मेंबर स्पेसिफिक पर्सन है जिसने ईमेल किया, तो उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। होती अमूमन छोटी सी चीज़ है, नोबडी नोटिस, बट इट रियली मैटर्स। इसी तरह IEEE के OU एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है जो IEEE मेंबर्स को अवेलेबल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आप स्टूडेंट ब्रांच की लीडरशिप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस वक्त वहाँ कौन चेयरपर्सन है, ताकि आप उनको रीच आउट कर सकें फॉर योर कोलैबोरेशन, फॉर योर इवेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। मजीद बेनिफिट्स आपने कैसे एक्सप्लोर करने हैं और प्रोफेशनली अपने आप को किस तरह ग्रो करना है, यू कैन गो एंड गूगल इट, IEEE मेंबरशिप बेनिफिट्स। स्पेसिफिकली रीजन के परस्पेक्टिव से वहाँ उन्होंने बताए होते हैं और वहाँ आप जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। IEEE की स्टूडेंट ब्रांचेस होती हैं, रीजन सेक्शंस होते हैं एंड देन रीजन्स होते हैं। स्टूडेंट ब्रांचेस में मजीद हम एक्सप्लोर करें तो चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स हम बैक आना चाहें कि हायरार्की को समझना चाहें, स्टूडेंट ब्रांच मिलके जो है वो सेक्शंस बनाते हैं, देन सेक्शंस मिलके रीजन्स बनाते हैं। अब इस वक्त IEEE की पाकिस्तान में 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं, लाहौर सेक्शन, कराची एंड इस्लामाबाद। सो इसमें प्रोफेशनली ग्रो करने का इसमें ये भी है कि लाइक उस वक्त कोविड से पहले IEEE की कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड इट वाज इन सखर, PSY उसका नाम था। आई वेंट देयर, आई मेट डिफरेंट हाईली टेक्निकल पर्सन्स जो कराची में अब अपनी ब्रांच की लीडरशिप पे हैं। सो एक नेटवर्किंग होती है जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है और वो स्पेसिफिकली एक लैब में वर्क कर रहे हैं एंड अपॉर्चुनिटीज और रेफरेंस एंड ऑल डज दैट मैटर, और उससे जो है वो आपको अपने कैरियर में हेल्प मिलती है बिकॉज आपको पता होता है कि स्पेसिफिक फील्ड में कौन एक्सपर्ट है। स्टूडेंट ब्रांच की हम बात कर रहे थे, हम सेक्शंस पे आते हैं। सो जिस तरह स्टूडेंट ब्रांच मिलके जो है वो एक सेक्शन बनाते हैं, पाकिस्तान में 3 सेक्शंस हैं और इस फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामाबाद सेक्शन में लाया करती है। एंड देन सेक्शन जो है वो एक गवर्निंग बॉडी होती है स्टूडेंट ब्रांचेस के ऊपर। इसी तरह डिफरेंट सेक्शंस और IEEE के 10 सेक्शंस हैं, रीजन 10 IEEE के 3 सेक्शंस हैं एंड सेक्शंस के ऊपर रीजन होते हैं। एंड देन रीजन्स जो है वो 10 रीजन पाकिस्तान जो है वो R10 में लाया करता है। R10 इस्लामाबाद सेक्शन एंड देन फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। ये तो था IEEE की डिफरेंट हायरार्की। कॉन्फ्रेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, जो मेरे नजदीक है, वो IEEE की ग्रांट्स और कॉन्फ्रेंसेस। आई वेंट टू PSY सखर में IEEE कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए जो है वो आई अप्लाइड एंड आई गॉट सिलेक्टेड। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे अभी तो चूंकि कोविड है, बट आफ्टर कोविड यू कैन अप्लाई फॉर दोज ग्रांट्स। बट जो मुझे एक चीज ऑल अक्रॉस पिछले 4 सालों में जो IEEE के साथ जब से मैं एसोसिएटेड हूँ एज ए स्टूडेंट मेंबर, जो सबसे मुझे चीज़ फील हुई है वो ये है कि स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करते, दे डोंट हैव टाइम टू अप्लाई। वो ये कहते हैं कि हमें IEEE की मेंबरशिप से कुछ ऐसा सच फ़ायदा नहीं मिलता। दे जस्ट नीडेड पैशन, उनको जो है वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कोलैबोरेट टेक का जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इट्स जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बट फॉर प्रोफेशनल्स। यू कैन गो देयर, आप कोलैबोरेट टेक के एम्बेसडर बन सकते हैं, IEEE डे के एम्बेसडर बन सकते हैं, IEEE एक्सट्रीम के एम्बेसडर बन सकते हैं, IEEE बेस्ट डे होता है पावर के जो हैं उनके एम्बेसडर बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस स्पेसिफिक फील्ड में लाई करता है एंड यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दैट स्पेसिफिक IEEE सोसाइटी एज वेल। नेक्स्ट एक पॉइंट पूछा गया था कि IEEE किस तरह जो है वो हेल्प करती है। सो IEEE एंड फ्यूचर में मैं ये कहना चाहूँगा कि IEEE के डिफरेंट मेंबरशिप ग्रेड्स होते हैं। जब आप स्टूडेंट मेंबर होते हैं, यू आर स्टूडेंट, मेंबरशिप ग्रेड पे इसी तरह ऑल अक्रॉस ऑल योर लाइफ आप IEEE के साथ एसोसिएट रह सकते हैं। इस तरह आपको IEEE नेटवर्किंग के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और जो है वो हेल्प करती है। इवन आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो PhD की रिसर्च पेपर लिखते हैं IEEE एक्सप्लोर पे, वो रिसर्च पेपर्स मोस्टली जो है वो वहाँ होते हैं या researchgate.net पे मौजूद होते हैं। तो IEEE एक्सप्लोर के आपके पास मेंबरशिप चाहिए होती है तो एज एन IEEE मेंबर आपको उस हवाले से एच मिलता है। तो ये एक पूरा सर्कल है जिसमें तमाम प्रोफेसर, डॉक्टर्स वगैरह जो हैं, जो सीनियर लीडरशिप है डिपार्टमेंट में, वो IEEE के बाय डिफॉल्ट अमूमन मेंबर होते हैं। सो मेरा जो अगला सर्वे है वो पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, और चूँकि मैं पर्सनल ब्रांडिंग कोच भी हूँ तो लेट मी शेयर दिस लिंक।
and then unit. So आपको prominent कर सकते हैं. It's a very quick form. You can just fill it in, I guess, 2 seconds or 3 seconds. So, survey के results live show हो रहे हैं. We have very much good response. प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक और चीज़ भी मैं लिंक्डइन के हवाले से बताता चलूँगा कि वाई और किस तरह आपने जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देखनी, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग हैं जो इस सवाल का भी आंसर चाहते होंगे कि हमें जॉब चाहिए, हमें इंटर्नशिप चाहिए, बट हाउ हमें पता नहीं है कि कहाँ से इंटर्नशिप मिलती है, कैसे इंटर्नशिप मिलती है. और एक और कॉन्सेप्ट होता है मेंटोर का कॉन्सेप्ट. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट एज वेल. Okay, so we have just, I guess, 30 seconds and then we will have presentation. उस पे presentation पे वापस आ जाएंगे. Great. So we have a very diverse audience, almost equal audience that daily uses LinkedIn and almost equal जो कि LinkedIn use नहीं करते हैं. Great. Okay, so almost 45% लोग मैं इनको जो है वो मंथली और डोंट यूज को ऑलमोस्ट एक ही तरह कंसिडर करूँ तो 50% लोगों को लिंक्डइन का ऑलमोस्ट नहीं आइडिया. ये बड़ी अच्छी फिगर है कि 32% जो है वो ऑडियंस जो है वो डेली यूज करती है. जो लोग लिंक्डइन को यूज नहीं करते, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाए, बिकॉज आप प्रोफेशनल फील्ड से हैं. बेशक आप मैथ कम्युनिकेशन से हो या आप जो है वो इंजीनियरिंग से हो या CS से हो, इवन डॉक्टर्स भी जो है दे शुड बी ऑन लिंक्डइन, बिकॉज आपको गूगल किया जाता है जब आपको रिक्रूटर हायर करता है. बिकॉज रिक्रूटर एक इंटरव्यू तो आपका कंडक्ट कर ही लेता है, बट आपके सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स पे वो जाते हैं और देखते हैं कि जिस हम एम्प्लॉय को, जिस हम रिसोर्स पर्सन को हायर करने लगे कि वो हमारे कल्चर उसके लिए फिट आता है या नहीं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना होता है. So let me open the presentation and so पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं. चंद ही मैं मिनट यहाँ लूँगा, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट्स. पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूर है सोशल मीडिया पे? मैं इसकी एग्जांपल मूवमेंट इस तरह देता हूँ कि अगर आप जो है वो आपके पास एक डोनट है या कोई आपके पास एक ऐसी चीज़ है, आप सोशल मीडिया पे फेसबुक पे आप उसे ये कहेंगे कि मुझे डोनट पसंद है, स्नैपचैट पे कहेंगे ये देखिए मैं डोनट्स फिल्टर के साथ मैं डोनट खा रही हूँ, एंड देन इंस्टाग्राम पे तस्वीर आएगी, और जो पिंटरेस्ट एक प्लेटफॉर्म है उस पर आप रेसिपी ऐड करेंगे, तो स्नैपचैट पे किसी और तरह, स्पॉटिफाई पे किसी और तरह, और व्हाट्सएप पे किसी और तरह कम्युनिकेशन होगी. तो जब आप लिंक्डइन पे आते हैं तो अगर उसी एग्जांपल को दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जो है वो डोनट फ्रेंचाइज ओपन की हुई है, या मेरा कुकिंग का बिजनेस है, मैं डोनट कंपनी में जॉब ढूंढ रही हूँ. तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है. सो इसी तरह लिंक्डइन को यूज़ किया जाना प्रोफेशनल ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए. 9 में से 10 रिक्रूटर्स जो हैं वो लिंक्डइन यूज़ करते हैं और रिक्रूटर्स लिंक्डइन पे मौजूद होते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक आम स्टूडेंट है बाकी स्टूडेंट्स की तरह, बट उसको क्यों हायर किया जाए और कंपनी उसको क्यों रखे? अगर आपके पास स्किल्स भी है बट कंपनी को नहीं पता आपके पास स्किल्स हैं, तो आपको कैसे हायर किया जाएगा? तो यहाँ आ जाती है पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनल ग्रोथ. और यहाँ IEEE कैसे लिंक करती है? वो इस तरह लिंक करती है कि फॉर एग्जांपल आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें स्पीकर
कि जब पोस्ट ऑब्वियसली ब्रांडिंग तो हुई ही, बट जब जिसने पोस्ट की, आपकी जो ब्रांच की लीडरशिप है स्टूडेंट ब्रांच की, उन्होंने पोस्ट की, अपने सोशल मीडियाज पे पोस्ट की, और जो है जब आप स्टूडेंट लीडर होते हैं तो आप एज अ टीम वर्क करते हैं, और तो पूरी कम्युनिटी पूरे नेटवर्क में पता चलता है कि आप जो है वो स्पेसिफिक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और लिंक्डइन पे जो है वो प्रोफेशनल्स मोस्टली होते हैं, कंपनीज के सीईओज, सीटीओज एंड कंपनी के अदर जो है वो लिंक्डइन पे होते हैं। तो आपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी इस तरह ऑप्टिमाइज करनी है कि आप जो है ये बताएं कि आपकी क्या एक्सपर्टीज है और स्पेसिफिक फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, और आप ही को क्यों जो है वो इंटर्नशिप दी जाए या सारी चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट की जाए। ये चंद बातें हैं लिंक्डइन के हवाले से, और मज़ीद मैं आपको जो है वो लिंक्डइन के एक क्विक डेमो दे देता हूँ ताकि जिन लोगों के पास लिंक्डइन नहीं है उनको आइडिया हो सके, और मैंने IEEE की क्या क्या चीज़ें वहाँ मेंशन की हुई हैं वो भी आपको मैं शो करा देता हूँ। ओके, सो हियर इज़ माय लिंक्डइन प्रोफाइल। एक प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, बैकग्राउंड कवर ब्लॉग चेंज नहीं करते। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ये है पब्लिक प्रोफाइल एंड URL। सबसे पहले जो मैं चीज़ देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि पब्लिक प्रोफाइल का URL एडिट है। अगर एडिटेड नहीं है ये, तो इसका मतलब उसने लिंक्डइन प्रोफाइल आगे एडिट की है। ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरे नज़दीक ये बहुत ज़रूरी है, और मैं इससे आइडिया लगाता हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल किस है। ये यहाँ आपके पास पाइथन जेंगो डेवलपर है या आप मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, आपकी एक्सपर्टीज की स्पेसिफिक फील्ड में है, आप यहाँ लिख सकते हैं। आप हैशटैग्स को है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो फीचर्ड सेक्शन में आप अगर फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पैशनेट है, आई एम पैशनेट अबाउट IEEE, क्लाउड कंप्यूटिंग, लिंक्डइन पे डिफरेंट टॉक्स दी हैं AWS पे रिलेटेड, तो आई हैव एडेड ऑल दोस। यू कैन आल्सो ऐड योर प्रोजेक्ट्स हियर। इट डिपेंड्स कि आपका एम क्या है और आपने किस तरह अवेल करना है। दिस इज अबाउट सेक्शन, यू कैन राइट वट एवर यू वांटेड टू राइट बट रेलिवेंट टू दैट स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी दैट यू आर अवेलिंग। आपको लिंक्डइन पे जॉब्स का सेक्शन मिलता है, दिस इज द जॉब सेक्शन, यहाँ आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, मुझे नहीं था पता कोई IEEE चीज़ है, बट IEEE में जब आया मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया और मुझे बताया। जो मैंने मेंटोर का भी बात की थी, देयर इज ऑलवेज अ मेंटोर, और लिंक्डइन पे आपको इजीली लोग मिल जाएंगे। आप अमूमन स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जब फाइनल ईयर में आए तो प्रोफेशनली ग्रो करना उनको पता है, जॉब चाहिए, तो चलो सुना था लिंक्डइन है, पहले सेमेस्टर में सुना था या थर्ड सेमेस्टर में सुना था, तो चलो कोई नहीं 7वें सेमेस्टर में जाके लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लेंगे। तब लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं जब जाके स्पीकर्स को या लोगों को जो है वो ऐड करने लगता है। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड AWS से रिलेटेड है, मैं AWS से रिलेटेड लोगों को जो है वो इधर ऐड करता हूँ, और फिर जो है कि मैं यहाँ डेली या रेगुलरली पोस्ट को शेयर करता हूँ। इसमें एक स्मॉल से टिप आप लोगों के लिए ये है कि वीकली इस पे जो है कोई ना कोई पोस्ट शेयर किया करें। हम खबरें सुनते हैं, हम अखबार भी अमूमन पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनल्स पे पढ़ते होंगे, इसी तरह गूगल न्यूज़ की ऐप है, उस पर ऑथेंटिक वो आपकी फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ आ रही होती है, यू जस्ट नीड टू शेयर। बिकॉज अगर आपको अपने आप को लीडर एस्टेब्लिश करना है या अपनी फील्ड में एक्सपर्ट एस्टेब्लिश करना है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो बाकियों को ना पता हो। बाकियों को पता भी होती है बट नोटिस भी नहीं होती, तो यू जस्ट नीड टू शेयर एंड एस्टेब्लिश योरसेल्फ एज अ ब्रांड, बिकॉज आपको तब लोग जानते हैं जब आप किसी को मैसेज करते हैं लिंक्डइन पे कि मुझे डायरेक्ट जॉब चाहिए या मुझे डायरेक्ट इंटर्नशिप चाहिए, मुझे पता चला है, वो आपको क्यों इंटरेस्टेड होगा इस चीज़ के लिए। व्हाई नॉट कॉन्टेक्ट देम 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, 2 साल पहले उनको रीच आउट करें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या आप मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं स्पेसिफिक जो है वो टेक्नोलॉजी ABC से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरह वो है आपको लोग फैसिलिटेट भी करते हैं, आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको इग्नोर नहीं करते। मोस्टली लोगों को ये शिकवा आता है कि दे इग्नोर्ड। और इसमें एक और चीज़ ये है कि कंटेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं कहना चाहूँगा IEEE में जब जो लोग IEEE में उनको पता है, उनको इतनी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, इवन पोस्टर्स भी बनाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। मैंने वहाँ से IEEE से डॉक्यूमेंटेशन सीखी, या आपके पास अच्छी डॉक्यूमेंटेशन टीम होनी चाहिए, ईमेल कैसे प्रोफेशनल राइट करनी हो, सारी चीज़ें। सो आप यहाँ एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, लाइक मैंने IEEE का सारा मेंशन किया, ऑल्दो इट्स अ बिट अपडेटेड नहीं हुआ है काफ़ी अरसे में, बट मैंने सारा मेंशन किया। और जो है वो डिफरेंट कंपनीज आपको खुद रीच आउट कर रही होती है, बिकॉज यू आर अ कम्युनिटी लीडर एट योर यूनिवर्सिटी। कैरियर फेज ऑर्गेनाइज करने में यूनिवर्सिटी की का जो डिपार्टमेंट है वो आपको रीच आउट करता है, यानी IEEE को रीच आउट करता है कि ये ऑर्गेनाइज करें। डायरेक्टली स्पीकर्स के साथ आप इन कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, इस तरह आपको यूनिवर्सिटीज और सारी चीज़ों से हेल्प मिलती है। सो ये चंद चीज़ें हैं जिससे आप IEEE के प्लेटफॉर्म से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। तो ये
चीज़ है कि IEEE मैं इसको कहता हूँ कि खजाना एक बहता दरिया है, उसमें से जो है आपने अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो बेनिफिट जो है वो पिक करना है। लिंक्डइन पे और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नेटवर्क और आप जहाँ फिल्टर्स लगा के, लाइक आप किस कंपनी में किस स्पेसिफिकली किस तरह लोगों को सर्च करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो इट्स अ हाईली पावरफुल प्लेटफॉर्म। और मैंने इवन हमारे जो अलुमनाइज हैं यानी IEEE UET के जो अलुमनाइज हैं उनको यहाँ लिंक्डइन पे फाइंड किया। इवन मैंने फाइंड भी नहीं किया बल्कि मैंने जस्ट एक पोस्ट की थी और उसमें नीचे कमेंट आया था मैंने IEEE अलुमनाई ऑफ 1990s में से, तो कंग्रेचुलेशन उन्होंने किसी पोस्ट पे मुझे किया था, तो वहां से पता चला। तो लिंक्डइन से आपको बहुत से लोगों को कनेक्ट करने का मौका मिलता है जो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी सारे बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इस पे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं लिंक्डइन पे, आपको स्किल्स मेंशन करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक चीज़ सब स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि यहाँ एक ऑप्शन होती है इंडोर्समेंट की। सिंपली आप अपने कोलीग्स को कहीं इंडोर्समेंट करें। उसकी रीज़न ये है, IEEE में या डिफरेंट सोसाइटीज़ में आप मौजूद होते हैं तो आपको जो है वो पता होता है एक दूसरे को, और इजीली आप नेटवर्किंग आपने ऑब्वियसली की होती है, तो व्हाई नॉट यूज देम टू गेट एंडोर्स फॉर योर स्किल्स। और इसी तरह इतने कोलीग्स आपके साथ वर्क कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो यहाँ रिकमेंडेशन लेनी चाहिए जो है वो तमाम अफराद से जिन्होंने आपके साथ वर्क किया। ये मेरे सारे IEEE के सीनियर हैं जो IEEE से जो है वो जिन्होंने जो है लास्ट ईयर 1-6 के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे मैंने जो है वो रिकमेंडेशन ली। सो इस तरह जो है वो अपना पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हो, क्योंकि रिकमेंडेशन एक दफ़ा आ गई है आपके सीनियर से तो कल को ये किसी स्पेसिफिक बड़ी पोस्ट पे ऑब्वियसली इंशाल्लाह किसी बड़ी पोस्ट पे होंगे, तो वो जब कोई और पर्सन आके आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखेगा तो उनको जो है वो अहमियत का ज़्यादा होगा कि आपके इनके साथ वर्क किया था। तो सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड वे में और इस तरह जो है वो IEEE ने मुझे हेल्प किया और मैंने IEEE से जो है वो सारी चीज़ें सीखी और मैं मज़ीद जो है वो बाकी लोगों को बताता हूँ। इसमें एक प्राइम एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अगर आज मुझे रीच आउट किया गया एज अ स्पीकर तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई वीडियो पोस्ट स्पीकर या आप गूगल किया गया होगा या लिंक्डइन के थ्रू ब्रांडिंग की गई होगी या आई हैव ब्रांडेड माई सेल्फ एज इट इज़, तो इस तरह जो है वो इन्वाइट किया गया। और इसी तरह मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि जो है वो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो कम्युनिटी में स्प्रेड की जाए और लोगों को बताया जाए इन सारे बेनिफिट्स के हवाले से। So this was all about personal branding, and then coming back towards the presentation. Okay, so जो आखिरी पार्ट था प्रोफेशनल लाइफ का कि लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ, और कुछ मेरे पार्ट से नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, फंडिंग एंड स्कॉलरशिप्स। फंडिंग पर्सनल लेवल पे यू कैन जस्ट गो आउट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतने ज़्यादा अफराद का यहाँ मेंशन किया, यू कैन जस्ट गो आउट एंड टेल देम कि आपको जो है वो स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन में मेंशन किया गया था एंड मैं इसलिए जो है वो मैंने आपको रीच आउट किया और मुझे पता चला आपने स्पेसिफिक स्कॉलरशिप 2 साल पहले अवेल की थी, तो काइंडली मुझे आप बता सकती हैं कि कैसे अवेल की थी। ये आई डू दिस। मैं जिस इवेंट पे जाता हूँ, मैं IEEE के स्पेशली जिस इवेंट में जाता हूँ, कोई एक बड़ा स्पीकर आ रहा है, आई ईमेल देम बिफोर गोइंग टू द इवेंट एंड आफ्टर गोइंग टू द इवेंट आई मैसेज देम, नॉट मैसेजिंग देम ऑन व्हाट्सएप, मैसेजिंग देम ऑन लिंक्डइन और ईमेलिंग देम। लिंक्डइन पे इवन रिप्लाई आ जाता है CEOs ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ऑल्दो दे आर बिजी बट दे डू रिप्लाई, या कंपनी के सीनियर लीडरशिप का। तो इस तरह जो है आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हो। मेंटर का कांसेप्ट, आपका जो है वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से जो है वो एक मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि इंडस्ट्री में क्या सारी चीजें चल रही हैं और जरूरत पड़ने पे आपको वो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी के लिए रिकमेंड भी करे। सो IEEE के नेटवर्क पे हमने डिफरेंट इवेंट्स जब ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट क्या पूरी यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट कर रही होती है, VC और सारी चीजें, उस राउंड टेबल टॉक होती है, उसमें VC और डिफरेंट कंपनीज के जो है वो प्रोफेशनल्स आए होते हैं। तो आप जब उन्हें ईमेल्स करते हैं और जब उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जिंदगी के किसी मोड़ पे वो आपको जरूर हेल्प करते हैं। और स्कॉलरशिप्स का मैंने जैसे जिक्र किया, यू जस्ट नीड टू अप्लाई दो स्कॉलरशिप्स। काफी सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, हर साल नाम भी चेंज हो जाते हैं स्कॉलरशिप के। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। इस साल IEEE UET से MSc की स्टूडेंट है, MSc मेगाट्रॉनिक्स, इट कुड बी अदर एज वेल लाइक CS के भी हो सकते हैं, बट लेट मी शो यू। उन्होंने जो है
ये मारिया शौकत है, ये तो 2017 में गई थी, बट जो रिसेंट अचीवमेंट है इस साल की वो ये है। महानूर महमूद है, फर्स्ट पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में, ये एक या दो लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है $5,000 इस साल जो है वो पाकिस्तान से ये हैं। सिर्फ उन्होंने एफर्ट की और इन्होंने अप्लाई किया। ये एमएससी की स्टूडेंट है, बट इन्होंने अप्लाई किस बेस पे किया था? ये थर्ड सेमेस्टर 4th 5th 6th में IEEE वुमेन इन इंजीनियरिंग बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में चेयर रह चुकी थी। यू कैन गो एंड गूगल देम। उसने उस बेसिस पे अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस की बेसिस पे अप्लाई किया स्कॉलरशिप में, और ये जो है इन्होंने विन किया। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, बट यू जस्ट नीड दैट राइट अप्रोच एंड दैट पॉजिटिव माइंडसेट कि अगर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज दी हमारे स्टूडेंट ब्रांच के कुछ प्राइजेस थे। सो बेसिकली जो PDF डॉक्यूमेंट आपको शो हो रहा है, दिस इज अचीवमेंट ऑफ लाइक इसका डायरेक्टरी का हमने नाम दिया, जिसमें हमारे पूरे साल के तमाम इवेंट्स एक्टिविटीज और सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। सो रेफरेंस के लिए ये काफ़ी अच्छा एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। सो दैट ये इसका मकसद बताने का ये था कि आप लोग मोटिवेटेड रहें और IEEE से अपने आप को इस तरह प्रोफेशनली ग्रो करें, और अब जो है वो स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप्स और सारी चीज़ें इधर से अवेल करें। मजीद आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नोट डाउन करते जाइएगा, एंड ऑफ द सेशन जो है वो पूछा जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर सेशन। आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन ऑलवेज आस्क IEEE से रिलेटेड। बेशक आप मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है या CS के या किसी और यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, यू कैन ऑलवेज आस्क। सो फ्लोर ओपन है, ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। ओवर टू द होस्ट। If anyone of the participants has any questions, they can open up their mic and ask the questions. सो ये IEEE की बेनिफिट की वेबसाइट है, जिस जो उस वक्त मैं मेंशन नहीं कर सका, जिसमें आप ये देख सकते हैं A to Z सब कुछ यहाँ में। इवन IEEE का स्पेक्ट्रम मैगजीन है, वो इंटरनेशनल मैगजीन है, उस पे जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही होती हैं, आप उस पे देख सकते हैं। IEEE की जॉब साइट है, कॉम्पिटिशन्स हैं, इसी तरह IEEE की ई लर्निंग लाइब्रेरी है। एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइट पर आप जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। मेंबरशिप, मेंटोरिंग, सब कुछ है। मेंबर ग्रेड एलिवेशन जैसे मैंने जिक्र किया। सो एक बहुत बड़ा दरिया है जिसको आपने एक्सप्लोर करना है। ईमेल आपको मिल जाती है। इसी तरह IEEE की कोलैबोरेटेक मैंने बताया, कोलैबोरेटेक में एक ऑप्शन होता है जिससे आप बाकी मेंबर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इस वक्त किसी और यूनिवर्सिटी में सावा सेक्शन की किसी यूनिवर्सिटी में कोई और स्टूडेंट है जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जैसे उसको मेंबर्स की हमारे पास डायरेक्टरी है। यंग प्रोफेशनल्स है, ये यानी कि जो स्टूडेंट मेंबर्स है प्रोफेशनल लाइफ पे जा रहे होते हैं, ये उनकी स्पेसिफिक कम्युनिटी है। अब वॉलंटियरिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब इसमें एक नॉन टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं IEEE, जैसे अगर मैं आपको शो करूँ IEEE साइट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ह्यूमैनिटेरियन टेक्नोलॉजी। सो आप जो है वो ह्यूमैनिटेरियन साइट, ह्यूमैनिटेरियन वाला जो है वो एक पोर्शन उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। इट कुड बी लाइक अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है और वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे है, आप उसमें कर सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो आपका होता है उसके आप ग्रांट्स उसके अवेल कर सकते हैं। कई अफराद ने मेरे नॉलेज में है जिन्होंने अवेल किया। सो दिस इज ऑल अबाउट IEEE। ओवर टू द होस्ट। ओवर टू दी होस्ट। लाइक अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो होस्ट बता दें ताकि आई कैन आंसर दें। Thank you so much. I'm
sure that everyone had a great learning experience just as I did, and I hope there are no more questions. So the feedback, or you can write in the chat box. Sir, we have a question in the chat box. What are the recent opportunities in for media students? ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि अब जैसे कि मैंने जिक्र किया कि IEEE इज अ डाइवर्स सोसाइटी, इसमें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस स्पेसिफिक फील्ड में लाया करता है. अब अमूमन ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट में जो है वो एज अ टीम आपको वर्क करना होता है. तो जब आप एज अ टीम वर्क करते हैं तो डिफरेंट रोल्स असाइन होते हैं और डिफरेंट टास्क असाइन होते हैं. तो मीडिया स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जो है वो हेल्प कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इससे प्रोजेक्ट से पहले तो बात आती है प्रपोजल लिखने की और सारी चीज़ें लिखने की. तो प्रपोजल राइटिंग, तो वो मीडिया वाले स्टूडेंट ज़्यादा इस पर्सपेक्टिव में जो है वो एक्टिव होते हैं और दे कैन इजीली हेल्प द IEEE स्टूडेंट ब्रांच as a volunteer in getting those opportunities and then also helping them as a volunteer. इस volunteer करने का ये मकसद नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्निकल जो है वो वर्कशॉप्स करवानी है या इस तरह के वेबिनार्स करवाने हैं. फॉर एग्जांपल, हम क्या करते थे IEEE UT में, UT से एफिलिएटेड कॉलोनी में एक स्कूल था और हम जाकर वहाँ वर्कशॉप्स देते थे टेक्निकल, या स्टूडेंट्स को जो है बताते थे साइंस के बारे में. तो यू कैन डू दैट एज वेल एंड देन उसके बाद आप उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे एज अ सॉफ्ट कॉर्नर जो है कम्युनिटी में बताने के लिए कि वी आर डूइंग गुड फॉर द कम्युनिटी. तो आप जब गुड फॉर द कम्युनिटी करते हैं देन उसके बाद हैशटैग आप यूज करते हैं, IEEE आपको अपने सोशल मीडिया पेज पे फीचर कर देता है. So this is how you get the visibility and how you get the LinkedIn followers, and then आपको followers मिल जाते हैं, relevant industry professionals आपके साथ connect हो जाते हैं, उनके point of view, उनके जो है वो network में आप आ जाते हैं. तो obviously they would आपको वो पहले से जानते होंगे. जब आप उनको मैसेज करते हैं तो वो ये कहते हैं हाँ मुझे मालूम है आपका, क्योंकि मैंने आपकी वो स्पेसिफिक ABC पोस्ट देखी थी. इट ऑलवेज हैपन्स विद मी. अमूमन लोग मुझे इसी तरह कहते हैं और मुझे कभी ये अपने आप को ज़्यादा इंट्रोड्यूस इतना ज़्यादा नहीं बताना पड़ा, बिकॉज या तो वो गूगल कर लेते हैं मुझे, या तो वो लिंक्डइन पे इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं. और इवन मैं भी अमूमन कोई भी स्टूडेंट व्हेन दे रीच आउट टू मी, आई ऑलवेज आस्क फॉर द लिंक्डइन प्रोफाइल. उससे आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट का कैलिबर क्या है, किस फील्ड से है और किस तरह जो है वो उसको हेल्प करना है. तो IEEE ने मुझे सारी चीज़ें सिखाई हैं. IEEE का एक वेबिनार था, सेमिनार था, सॉफ्ट स्किल्स का सेमिनार था. हमारी एक लेगेसी है IEEE UT में, हर साल हम एक समिट ऑन सॉफ्ट स्किल्स पे बात करते हैं. उसमें मैंने वो चीज़ सीखी. एंड देन कोविड जब आया तो उस वक्त ज़्यादा टाइम था सबके पास सोशल मीडिया पे था. इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द फेसबुक, आई वेंट टूवर्ड्स द लिंक्डइन एंड देन आई फाउंड इट टू मच यूजफुल कि मैंने उसी एक मंथ हुआ था मुझे एक्टिवली लिंक्डइन यूज़ करने पे, मैंने उस पर एक वेबिनार भी करा लिया अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको फ़ायदा हो सके. सो होपफुली इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. काफ़ी लेंथी था बट काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने दे दिया. Sir, we have another question in chat box. Can you give us some information about the mentoring program that you mentioned? Okay. मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि मैं काफ़ी सारी एक हाई लेवल ओवरव्यू बता देता हूँ चीज़ों का. अगला मुझे इस चीज़ पे खुशी होगी कि आप जो है वो मुझे बाद में ईमेल करें या लिंक्डइन पे मुझे DM करें कि मैंने मेंटोरिंग प्रोग्राम की इस वेबसाइट पे गया था एंड देन मैंने वहाँ ये चीज़ देखी, मुझे ये पता चला बट अब मैं स्टक हो गया, मुझे आगे समझ नहीं आ रही. रेदर देन कि आप खुद मुझे पूछें कि इसकी डिटेल क्या है. मैंने बताया यू जस्ट नीड टू गूगल इट. गूगल करना भी एक हुनर होता है और उसमें आप अप्लाई करें. अगर आपको अप्लाई करते वक्त कोई हर्डल आ रही है, आपको उसमें अमूमन ये होता है IEEE में, IEEE के एक अभी रिसेंट प्रोग्राम भी था क्लैप के नाम से, उसमें वो आपको एंडोर्समेंट चाहिए होती है IEEE मेंबर की. उस मामले में आई कैन हेल्प यू, और आपका जो IEEE लाहौर इस्लामाबाद सेक्शन है दे कैन हेल्प यू. सो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करें और जो है वो इस प्रोग्राम को खुद एक्सप्लोर करें. बेसिकली मैं बताता चलूँ, आपको एक मेंटर असाइन होता है और जो है वो आपको गाइड करता है आपके स्पेसिफिक प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड. तमाम इन्फॉर्मेशन और सब कुछ आपने जिस तरह एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसी तरह और उसी फॉर्मेट पे चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं. Sir, there is another question from the participants कि जो हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं IEEE? Okay, so
IEEE एक्सप्लोर, अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें, एक मिनट में ओपन करता हूँ। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है IEEE एक्सप्लोर। उस पर जाके आप जो है वो आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इधर से आप इंस्टीट्यूशनल साइन इन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के पार्ट है, इवन प्राइवेट भी, HEC ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है बाय डिफॉल्ट ही, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वरना आपको IEEE में लॉगिन करना पड़ता है, और IEEE अकाउंट से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर से जो आपके फील्ड और रेलिवेंट इंटरेस्ट है जिस स्पेसिफिक में, उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो IEEE हेल्प करता है। IEEE एक्सप्लोर इसका नाम है। Okay, participants, if you have any question, you may ask. दिस इज अनदर IEEE प्लेटफॉर्म OU एनालिटिक्स, जिसपे तमाम स्टूडेंट्स और वॉलंटियर पोजीशंस जो हो रही होती हैं, जो IEEE के मेंबर होते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट ब्रांच की लीडरशिप को अवेलेबल होता है। सो आप IEEE में वॉलंटियर करें ताकि आप स्टूडेंट ब्रांच की लीडरशिप में आए, ताकि आपको ये पोर्टल एक्सेस हो सके, और देन यू कैन यूज इट फॉर कोलैबोरेशंस एंड अदर कोऑर्डिनेशन विद अदर स्टूडेंट ब्रांच एज वेल। Over to the host. Thank you so much, sir. I'm sure that everyone had a great learning experience, and I hope there are no more questions. The feedback form has been shared. Please make sure that your name and your email address has been entered correctly before submitting it. You will only receive your certificates based on the details you have submitted. Over to you, Sana. Thank you, Aisha. On the behalf of IEEE Fatma Jinnah Women University, I would like to thank our speaker, Sir Sumama Zaheem, once again for accepting our invitation to address us today. Despite his busy schedule, this venture couldn't have been concluded in better way. Thank you, sir. We organized 3 modules scheduled for 3 consecutive days to celebrate IEEE Day 2021. The first module was addressed by Sir Adnan Malik on social media hygiene and career growth. The second module was addressed by Dr. Nazakat Ali, who enlightened us on the 4th Industrial Revolution. And today we conducted the third and the last module addressed by Sir Sumama Zaheem on professional development with IEEE. I would like to extend my gratitude to each and every one of you for contributing to the success of these events with your participation. I hope you enjoyed being a part of it just as much as we enjoyed organizing it. Now Neha will take over and conclude this event. Back to you, Neha. Thank you so much, Sana, and Assalamu alaikum everyone. I am Neha Hafiz and I was selected as an IEEE Day Ambassador. And I would like to take this opportunity to appreciate all our collaborators. Their interest in being a part of our events have been a great motivation to us. Thank you once again. Last but not the least, I would like to thank my team who have been working throughout the day and night to make this venture a reality. Your efforts have not gone in vain, and I'm proud of what we have achieved together. Cheers to all of you. Unfortunately, we have now to come. We have to now finish the event. Like it's the end. A final thanks to all the participants and the speakers and all of you. Please do follow us on our social media platforms to stay updated on our future event. Until then, happy IEEE Day, and I would like you all to
share up your emotions related to IEEE Day by using different emojis which we have in our platform on Teams. So thank you so much. I hope you all enjoyed and best of luck. Wish we are gonna have such an interactive and amazing audience again in our future events. From now onwards, Allah Hafiz.